So we are live. Okay, sir. Hello everyone, welcome to a ninth episode of NGO Talks with the Agents of Change. I am your host Nitin Shah, CEO and Director of ICAR Support Foundation, and today we are in conversation with the Intervention Coordinator from Parivartan Mental Health and De-Addiction Center, Dilip Gaonkar. So welcome Dilip sir again for the NGO Talks. Thank you, sir. Now, before I give you introduction for Dilip and Parivartan as an institute, I would quickly like to introduce the ICAR Support Foundation. ICAR Support Foundation is a non-profit organization focusing on promoting the mental health case that is bringing about change through awareness, support, and education. Our work is based on the belief that raising public awareness, educating communities, and equipping every person with the right tools can help us foster optimal mental health. While we work with people to be able to help them manage their mental states, one of the major line of focus that we have is helping the facilitators who are working in the area of mental health, be it mental health practitioners like psychologists, social workers, or NGOs which are working in the area of mental health. And that is what the objective of NGO Talks is, which is to bring in front of all of you the work of other mental health practitioners, other NGOs who are working in this area. Now, before we move on to actually the NGO Talks and we talk about Parivartan, one small thing is about the Mental Health Practitioner Challenge. It is an initiative that we created so that mental practitioners can request other people to seek support before it's too late. I would like to request everyone watching us to join us in this mission to make mental health more accessible and the stigma associated to visiting a mental health practitioner uh, get diminished as fast as possible. While we are going through this video today and through the episode today, if you have any questions, please feel free to ask us. And I'm sure I and Dilip sir would be more than happy to answer the queries and the questions that you have. Along with that, for those of you who are on Facebook and watching us on Facebook, please start a watch party and share this live with other people in your network and in your circle. You can always say hi to us and we would be more than happy to respond back to you. Now, coming to what we are here today for, which is Parivartan, a mental health and de-addiction center. Parivartan Trust. Uh, hello. Yeah, sorry. So, Dilip sir, am I visible over there? Am I audible? Sorry, I think I just lost the connection for a moment. So, the Parivartan Trust was established by Dr. Narendra Dabulkar and Dr. Shaila Dabulkar in 1991. The journey began with a small counseling center for people having addiction problems at Satara district, Maharashtra. In 3 decades, Parivartan evolved into a pioneer organization in the development and scientific testing of various models of care for people with mental health and addiction problems. They aim to provide high quality comprehensive mental health services at low cost to marginalized communities. Their organization or their ongoing activities are the Addiction and Rehabilitation Center, community based mental health care services, Mind Cafe, and Suicide Prevention Helpline. Our speaker for today is Dilip Gaonkar. He has completed his master's in social work in mental health from TIS Mumbai. Dilip joined Parivartan Trust in the year 2014 as an intervention coordinator and is currently leading the team of Parivartan Trust in Assam. He started his work in the field of mental health at the age of 21. As a community health worker, which raised his interest in the mental health care field. His area of interest is youth mental health. He looks in the prevention and reducing the harm of substance abuse and other addictions, along with community-based rehabilitation. So once again, welcome Dilip sir, and I would quickly like you to give us a brief idea about the Parivartan Trust and also about yourself. Thank, thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity today. Again, like second time that we are again live through your channel. Thank you for inviting our organization for your this wonderful talk to spread the work of like what Parivartan does.
So definitely it is a great pleasure for me also to be on your platform to share the work of Parivartan and what we do here in Assam and in Maharashtra with the help through Parivartan. So thank you all the viewers also for joining us. So just to start with myself, so I'm Dilip. I'm basically from Goa. I did my schooling till higher secondary in Goa. I am belonging to actually a small village in South Goa district. And then after my 12th, I did my BSW from Satara. So after my BSW, I did my MA Social Work in Mental Health. But just after completing my BSW, I worked in a mental health project, one of the projects of Sangath, जो मैंने गोवा में ही काम किया 3 साल. जब मुझे पहले भी मेंटल हेल्थ के बारे में जो पता नहीं था, इवन मेरे डिग्री के टाइमिंग में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था. पर जैसे मैंने काम करना शुरू किया आफ्टर माय ग्रेजुएशन, तो तब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि मेंटल हेल्थ बीमारी क्या होती है, कौन से लोगों को होते हैं, किसको होती हैं, कब होती हैं, क्या ये किसी स्पेसिफिक लोगों को यानी कि एज ग्रुप में होती हैं, या ये किसी एक रिलीजन के लोगों को होती हैं, या इसके पीछे जो बीमारी के पीछे जो होने वाले कारण हैं, मुझे भी पहले बिल्कुल भी पता नहीं था. साइंटिफिक जो रीजंस होते हैं मुझे भी अभी तब लगता था कि इसके पीछे जो एक सुपर या बाकी हम बहुत सारे सुपरस्टिशियस जो बिलीफ्स रहते हैं, तो वैसे ही मेरी भी आइडिया थी. और जैसे मैंने मेंशन किया, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता था, तो जो भी कुछ हमारे आइडियाज जो मन में मम्मी पापा बोलते थे, तो वो भी मेरे मन में धारणा सेम थी. तो जब मैं काम करते समय मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गए, डेवलप हो गए हैं. और धीरे धीरे जब मैं लोगों के साथ काम कर रहा था, तो उनकी क्या तकलीफ है, क्या है, इसके लिए क्या करना चाहिए, ओवरऑल मुझे एक 3 साल के काम के दौरान मुझे आइडिया मिल गई है. तब मैं ऐसा काम कर रहा था, एक ग्रास रूट लेवल वर्कर, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के हिसाब से मैं काम कर रहा था. तो जहाँ पे मैं एवरी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहते थे, जो जिनको मन की बीमारी होती थी, तो उनके घर में जाकर हमें वो इंटरवेंशन डेवलप करना था. इसका मतलब ये था कि उनको हमें वो बीमारी के बारे में समझाना था. तो वो मैंने 3 साल काम किया आफ्टर माय BSW. तो उसके बाद में मुझे एक लगा कि नहीं, ये फील्ड में मुझे काम करना चाहिए. तो मैंने बाद में मेरा फर्दर स्टडीज मास्टर्स जो है मैंने टीस मुंबई से की. स्पेशलाइजेशन मेरा मेंटल हेल्थ ही था, क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि मैं मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम करने का एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया है. और डेफिनेटली मैं कुछ करना चाहता हूँ जो कम्युनिटी में जो एक निग्लेक्टेड एरिया है, तो मेरी तरफ से जो एक जितना सपोर्ट हो पाएगा मैं कर पाऊंगा करके. तो जैसे मैंने 2014 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, तो उसके बाद में मुझे सेम मेंटल हेल्थ फील्ड में काम करने के लिए मुझे मौका मिल गया विद द हेल्प ऑफ परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में. परिवर्तन का हमारा काम जो है आसाम में चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल में. और एक्चुअली जो बेस ऑफिस है हमारा सातारा में है, जो सिंस 1991 से चल रहे हैं, जो डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और डॉक्टर शैला दाभोलकर ने शुरुआत की थी. तो मैं 2014 में तेजपुर में आ गया. तो यहाँ पे जो काम चल रहा था सेम एज एन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था, जहाँ पे मैं एज एन इंटरवेंशन कोऑर्डिनेटर ये काम करने के लिए शुरुआत की. पहले जब मैं आसाम में आया तो मुझे भी लगा एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट या आसाम में हम जब बोलते हैं, सुनते हैं मेनलैंड इंडिया में रह के, बहुत बार हमें लगता है कि हम तो ये आसाम नॉर्थ ईस्ट ये कहाँ पे है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है. बहुत बार हम लाइक रेसिस्ट काइंड ऑफ कमेंट्स भी करते हैं यहाँ के लोगों को देखकर. बहुत बार हम बोलते हैं ये शायद चाइना जापान से लोग आए हुए हैं, उनके यानी कि लुक से देखकर, यानी कि इस तरफ से, यानी कि ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो मेंटल हेल्थ में हम आगे में बात करने वाले हैं, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन. जब मैं टिस में भी पढ़ता था, मेरे मन में भी वैसा ही था, क्योंकि हमें बताया गया था कि जैसे कि वो चाइनीज लोग तो हमने देखे थे, तो वैसे दिखने वाले लोग एक तो चाइना में रहते हैं, नहीं तो फिर जापान में रहते थे. जब मैंने टिस के फ्रेंड्स को भी देखा, तब मुझे भी लगा ये शायद चाइना या जापान से आए हुए थे. पर जब धीरे धीरे उनके साथ में मिलना जुलना हो गया,
धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया, तब हमें लगा कि यानी कि ये भी एक आसाम के ही ऐसे लोग दिखने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसे दिखने वाले हैं। तो मेरे भी जो एक व्यू पॉइंट था उनको देखने की तरफ से, वो भी बाद में धीरे धीरे बदल गया। और जब यहाँ पे आया मैंने भी सोचा कि चलो एक नॉर्थ ईस्ट में मौका मिल रहा है तो लेना चाहिए, क्योंकि सुनते तो हम बहुत आए हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, पर बहुत बार हमने जाकर एक्सपीरियंस करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। जो मुझे मौका मिला तो मैंने इमिजिएटली हाँ बोला, यहाँ पे आ गया। अभी बिगिनिंग में थोड़ा स्ट्रगल हुआ एडजस्ट होने में मुझे भी, बट अभी ऑलमोस्ट 7 साल हो रहे हैं, लाइक 6.5 years हो गया। अभी मैं आसाम में काम कर रहा हूँ, परिवर्तन का काम अभी मैं पूरा ओवरऑल यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से जो एक सपोर्ट, जो मुझे पहले मैंने सोचा था चलो मेंटल हेल्थ में जाकर कुछ करेंगे, तो एक मुझे एक अच्छा मौका मिला था, वो मौके का मैं फायदा उठाना चाहता हूँ। और जो भी हमारा परिवर्तन का काम है, धीरे धीरे हम एक्सपांड कर रहे हैं। अभी 2 स्टेट में तो हैं, और बाकी भी स्टेट्स में हम एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो परिवर्तन के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। जैसे कि परिवर्तन संस्था जो है, जो एक्चुअली महाराष्ट्र बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1991 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर और डॉक्टर शैला दाभोलकर ने शुरू की थी। बहुत सारे लोग डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर को बहुत अच्छी तरफ से जानते हैं, क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट थे, एक रेशनलिस्ट थे, जिसने ये एक काउंसलिंग सेंटर के हिसाब से शुरू किया था। ऐसा एक डी एडिक्शन सेंटर या बाकी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हमारे धीरे धीरे एडअप होते गए। पर जब शुरुआत की थी तो एक काउंसलिंग सेंटर शुरू किया था, एक छोटा सा रूम में शुरू किया था, जो 1991 से चला रहे थे। पर धीरे धीरे हमें लगा कि सिर्फ काउंसलिंग से तो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत है, एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, एक डी एडिक्शन की सेंटर की जरूरत है। तो डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया। अभी डी एडिक्शन सेंटर जो सातारा में है, वहाँ पे अभी 25 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। बहुत यूनिक टाइप ऑफ लाइक मॉडल्स की तरह हम ये डेवलप करना चाहते हैं। और अभी हमारा डी एडिक्शन सेंटर सातारा में भी है और आसाम में भी है, तेजपुर में। और दूसरी बात, जैसे कि ये डी एडिक्शन सेंटर की हो गई, और दूसरा जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन या कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ये सिंस 2009 में पहला प्रोजेक्ट, जो एक फंडेड प्रोजेक्ट था, वो परिवर्तन के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। प्रोजेक्ट का नाम था कॉप्सी, कम्युनिटी केयर फॉर पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया जो था। तो उसके थ्रू ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था, फंडेड प्रोजेक्ट, वो शुरू किया। उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पाया कि एक ले हेल्थ वर्कर जो कंसेप्ट है, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, तो इसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट के थ्रू ले हेल्थ वर्कर्स, जिसने हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन फ्रॉम ले बैकग्राउंड किया है, उनको ट्रेनिंग देके घर में जाकर इंटरवेंशन डिलीवर करने के लिए ट्रेन किया गया। और इसका इफेक्टिवनेस हमने देखा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years, बहुत ही अच्छी तरफ से ये सक्सेसफुल रहा है। लोगों को जो जरूरत होती है, जो लोगों को पता नहीं होती है, उसकी वजह से हमारा पूरा रिकवरी प्रोसेस में जो डिले हो रहा है, तो ये एक इम्प्लीमेंटिंग ले हेल्थ वर्कर इन द रिकवरी प्रोसेस, ये बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक हमने देखा, सिस्टम देखा। तो 2009 से लेकर अभी तक हम कम्युनिटी हेल्थ में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। सेम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन में हमने इंसेंस करके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। उसके बाद में JMSP कंप्लीट किया है, जनमन स्वास्थ्य प्रोग्राम। थर्ड हमने फोर्थ किया है, एक थ्राइव करके प्रोग्राम किया है। ऐसे 4 कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हमने परिवर्तन के थ्रू किए हुए हैं, जो हमारे साइट्स डिफरेंट मल्टीपल साइट्स भी रहे हैं, डिफरेंट मल्टीपल स्टेट्स भी रहे हैं किसी किसी प्रोग्राम के लिए। पर अभी जो हमारे परिवर्तन का काम जो बेसिकली जो चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, आसाम में चल रहा है और अरुणाचल में चल रहा है। ओके, परफेक्ट। एंड एनी ऑफ, आपने जितने भी इनिशिएटिव्स हमें बताए, एनी पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो आपको लगता है जिसके बारे में आप और ज्यादा एलैबोरेटली बोलना चाहेंगे या बताना चाहेंगे? डेफिनेटली सर, एक्चुअली ये अभी के जो हमारे एक्टिविटीज हैं, जैसे एक्चुअली हमारा जो फंडिंग है, जो प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम जो फंडिंग के प्रोजेक्ट्स चला रहे थे, वो हमारा कंप्लीट फंडिंग बंद हो गया इन द ईयर 2018, बिगिनिंग ऑफ 2018।
तो बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट फंडेड प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जैसे फंडिंग खत्म हो जाती है तो बाद में ऑप्शन नहीं रहते हैं, काम बंद करते हैं। तो 2018 में ऐसा ही समय हमारे साथ सामने आया था कि अभी काम कंटिन्यू रखना है या काम बंद करना है। काम कंटिन्यू रखना है तो कैसे रखना है, तो ये थोड़ा थॉट प्रोसेस करके हमने काम हमारा सोचा कि इतना सेटअप किया हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स में है, जैसे कि आसाम है और अरुणाचल प्रदेश है, तो अभी बंद करने से तो फिर से शुरू करना, स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज, उतना आसान तो मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो हमने सोचा कि जैसे भी हो कि कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज हम डेवलप करने का जो हमारा एक मेन एम है, तो वो लेकर हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंडली हमने सोचा कि फंडिंग भी अगर नहीं है तो हम डेडिकेटेड, हमारे टीम मेंबर्स बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमने सोचा चलो ये थोड़ा एफर्ट्स डाल लेते हैं, देन वी विल सी हाउ वी कैन एक्सपांड एक्सटेंड आवर सर्विसेज। तो हमने 2018 में यहाँ पे स्पेशली आसाम में और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगह पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत ही कम है, स्पेशली टर्शरी लेवल केयर जो भी रहता है या साइकेट्रिस्ट केयर रहता है, बहुत ही कम है। और जहाँ पे भी अवेलेबल है, एक तो गुवाहाटी जो आसाम का कैपिटल सिटी वहाँ पे है, और बाकी तो एक तेजपुर में भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है LGBRMH करके, जो पूरे नॉर्थ ईस्ट का एक हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरा बहुत ही अच्छी तरह से केयर लिया जाता है। पर हर बार हर तरह से हर लोगों को यहाँ तक ट्रेवल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हमने एक सर्विस जैसे स्टार्ट किया कि हमारे टीम में साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इवन ले हेल्थ वर्कर्स हैं। तो उनके थ्रू हमने कम्युनिटी में जाकर एक सेटअप किया है, जैसे कि जो एक कम्युनिटी को आने के लिए जो डिस्टेंस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो वो कवर अप करने से लोग वहां पे अच्छे से ट्रीटमेंट ले पाएंगे। इसलिए हमने दूर दूर ऐसे आइडेंटिफाइड प्लेसेस लोकेट किया, आइडेंटिफाई किया, और वहां पे जाकर हम महीने में एक बार आउटरीच कैंप लगाते हैं, जहाँ पे वो लोगों को LGBR में तेजपुर तक आने की जरूरत नहीं है या गुवाहाटी तक जाने की जरूरत नहीं। जो आजकल हम बोलते हैं जैसे कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई, अगर हमारी नीड्स कितनी है और हमारी सर्विसेज कितनी है मेंटल हेल्थ में, तो ये बहुत ही बड़ा गैप है। जो हमें लग रहा है जैसे कि आप भी काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ फील्ड में काम कर रहे हैं, जो नेक्स्ट 40-50 ईयर्स तक शायद वो हम यानी कि ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा पाएंगे, ऐसे तो कुछ नजर तो नहीं आ रहा है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फ्रॉम द सिस्टम साइड ऑफ फैक्टर्स ऑल्सो। तो बट हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, तो ये एक मॉडल ऐसे हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे हम जाएंगे, वहां पे लोगों को ट्रीटमेंट दे देंगे, और उनको ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग मेडिसिन, काउंसलिंग, काउंसलिंग ओवर फोन इफ रिक्वायर्ड। अगर नजदीक में है, हमारे जो ले हेल्थ वर्कर्स हर सेटअप में हैं, तो इफ रिक्वायर्ड वी ऑल्सो प्रोवाइड होम विजिट्स, जो कुछ समझाने की जरूरत होती है, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, मेडिसिन के कभी साइड इफेक्ट्स हो जाता है, मेडिसिन छोड़ देते हैं, तो उसके लिए ऐसे ले हेल्थ वर्कर्स भी डेवलप किए हुए हैं। तो अभी हम ये इवन ये एंटायर सेटअप में हमारे पर मंथ ऑलमोस्ट अराउंड 400-500 ऐसे पेशेंट, पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस, डिफरेंट मल्टीपल डिसऑर्डर्स के लोग, हम हमारे साथ ऐसे कैंप चल रहे हैं, वहां पे हम देख रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। अभी मैं ये सर्विसेज को अगर 2 साल पहले हमने जो शुरू किया था और आज जो मैं अभी देख रहा हूँ, इसका ये डिमांड बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली अगर हम कम्युनिटी सेटअप, कम्युनिटी को अगर इंक्लूड करके लेते हैं, जब कम्युनिटी बोलते हैं उसमें कम्युनिटी के हर एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, तो उनको लेकर ऐसी सर्विसेज अगर शुरू करते हैं तो इसका रीच भी बहुत है, एक्सेप्टेंस भी बहुत है, और जो मेन प्रॉब्लम स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज जो हमारे कम्युनिटी में है, जिसकी वजह से हमारे रिकवरी में जो हर्डल्स बनते हैं, प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो वो भी डील करने के लिए बहुत अच्छी तरफ से हेल्प होते हैं। और वी आर लाइक अप्रोचेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि कभी हमें लोग फोन नहीं कर सकते हैं, हमसे बात नहीं कर सकते हैं। वी हैव केप्ट इट वेरी ओपन, सो people friendly kind of services, so that people will not fear of coming to a psychiatrist, having a chit chat and all। और ऐसा भी नहीं है ओनली पीपल विथ मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर कैन कम टू अस, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बहुत यूनिक ऐसा मॉडल हम डेवलप करना चाहते हैं यहाँ पे। और ऐसे बाकी भी सर्विसेज हमारे बहुत सारे हैं जो बहुत यूनिक तरह से ये करना चाहते हैं।
चाहते हैं हम, जो बाद में बोल ही दूंगा मैं आपको। Sure. And I actually think community based जो आप efforts कर रहे हैं और जो आप processes कर रहे हैं वो बहुत useful है, because it's true कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, unless people are willing to come to a therapist और आपको बोलने के अच्छा हम help चाहते हैं, तब तक आप उनकी really help कर नहीं सकते हो। वहाँ पे अगर community का support आपको होता है, जहाँ पे community के जो key members है वो लोग अगर आपके इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं, तो इट बिकम्स अ लॉट मोर इजियर बाकी के लोगों के लिए कि वो आए और आके आपसे कनेक्ट करें और आपसे सपोर्ट ले सके जो आप दे रहे हैं। राइट, यस सर। तो परफेक्ट, ब्रिलियंट। आप बोल रहे थे कि कुछ और इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे, सो आप प्लीज फील फ्री टू। हाँ, स्पेशली हाँ, ये सब जो इनिशिएटिव्स हमने लिए, एक हम जैसे बोलते हैं, यानी कि जब हमारे पास कुछ रहता नहीं है तब भी हम यानी कि हाथ पैर चलाना शुरू करें। अगर घर में हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है तो यानी कि हम बहुत बार क्या करते हैं, चलो अभी खाने के लिए कुछ नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा वैसे। तो ऐसा यानी कि जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट का फंडिंग जब शुरू हो गया, तब भी हमने बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं, बहुत यूनिक इनोवेटिव काइंड ऑफ सर्विसेज दैट वी हैव स्टार्टेड। तो इसमें जैसे कि एक माइंड कैफे है, सातारा में चल रहा है, किमाया करके हैं। बाद में मानस रंग ग्रुप करके एक है, जो एक आर्ट बेस्ड थेरापी है। तो मैं पहले यानी कि मानस रंग के ग्रुप के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। जैसे कि ये एक सपोर्ट ग्रुप की तरह है, जो बहुत बार हमने सब लोगों ने सुना है, स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, जो अल्कोहल एनोनिमस ग्रुप के बारे में सब लोगों ने सुना है। तो यानी कि स्पेशली जो भी कोई एडिक्शन के लोग हैं वो उनके लिए ग्रुप है। तो मन की बीमारी के लिए भी एक ऐसा ग्रुप होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने शुरू किया था एक मानस रंग ग्रुप, यानी कि मानस रंग यानी कि कलर्स ऑफ माइंड, ऐसा बोल सकते हैं। और ये एक आर्ट बेस्ड थेरापी है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जिनको मन का बीमारी है तो उनको एक ग्रुप में बुला लेते हैं। जैसे कि वो एवरीडे आकर बात करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स लाइक दे आर इंटरेस्टेड टू कम ऑन डेली बेसिस। कोई है वीकली बेसिस पे आते हैं, कोई फोर्थ नाइटली आते हैं और कोई मंथली आते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे उनको एक, जो भी उनके सफरिंग है, जो भी उनका इलनेस का पार्ट है, जो भी एक उनको वेंटिलेट होने के लिए, यानी कि खुल के बोलने के लिए एक जगह है, जहाँ पे उनको कभी कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, कोई कुछ बोलते नहीं है। उनके जो पोटेंशियल्स हैं उनको हमेशा उनको एक मोटिवेशन मिलता है। उनको उनके अंदर की जो टैलेंट है वो एक दिखाने के लिए एक मौका मिलता है। जनरली आमतौर पे हम जब देखते हैं, हमारे घर में भी बहुत तरह का हम स्टिग्मा फेस करते हैं। बहुत बार जो मैंने भी देखा है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली आई हैव सीन वर्क विद फैमिलीज। तो जब फैमिली भी हमें थोड़ा कुछ बोलते हैं, थोड़ा हमें डीमोटिवेट करते हैं, तो बाद में हम खुद को भी थोड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है। हम भी बाद में खुद इंटरनली यानी कि स्टिग्मेटाइज करना शुरू कर देते हैं खुद को। तो ये सब ना होने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो आकर खुल के बात कर सकते हैं। एक दूसरे का क्या क्या तकलीफ हर लोगों ने झेली है। तो जब हम दो लोग साथ में बैठते हैं, जो तकलीफ एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो लगता है हमें कि अच्छा, मेरे से ज्यादा उसने तो तकलीफ झेली हुई है। तो एक हमें भी लगता है चलो मैं भी इससे ये उबर कर आ सकता हूँ। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे ऐसे पर्सन विथ मेंटल इलनेस, उनके केयरगिवर्स, यानी कि पीयर एंड केयरगिवर्स का ग्रुप है, जो मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, फोर्थ बेसिस पे और इवन डेली बेसिस पे आते हैं। और जो अपना सिर्फ बीमारी के बारे में बात करना या बाकी सिर्फ टैलेंट के बारे में बात करना, ये तो बात होती है। इसके अलावा वहाँ पे कुछ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी दिया जाता है, ऑक्यूपेशनल बेस्ड ट्रेनिंग दिया जाता है। तो हर दिन आकर यानी कि ये बातें तो करते रहेंगे, इसके लिए स्पेसिफिक टाइम रहता है, पर हम उनको एक कुछ ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, जो उनके अंदर में उनको लगता है कि चलो मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, या फार्मिंग में इंटरेस्ट है, या टेलरिंग में इंटरेस्ट है, या एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट है। जो उनको लगता है वो उस तरफ से हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग हमारे इन हाउस भी रहती है, एंड ऑल्सो वी फैसिलिटेट, जो कम्युनिटी में जो भी कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ पे भी हम फैसिलिटेट करते हैं। और इन हाउस यानी कि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे भी उनको कोई ट्रेनर्स को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया जाता है।
जैसे कि हमारा टेलरिंग यूनिट चल रहा है, एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग का भी ट्रेनिंग चल रही है। इवन चॉकलेट मेकिंग, ये भी बहुत हम स्पेशली दिवाली के टाइमिंग में करते हैं। राखी का ये भी हम करते हैं, स्पेशली राखी रक्षाबंधन के दौरान में करते हैं। तो ऐसे यानी कि जो जिस टाइम में जैसे डिमांड रहता है उस तरफ से हम थोड़े थोड़े उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या उनके अंदर की स्किल डेवलप करने के लिए एक मौका देता है, जो वहां पे आकर सिर्फ बातें नहीं बोलते हैं, बातें सुनते नहीं है, कुछ काम करते हैं, एंड ऑफ द डे कुछ पैसा भी लेकर घर में जाते हैं। ये एक होल कंसेप्ट ऑफ मानस रंग दैट एक्चुअली वी ऑपरेट इन सातारा एंड ऑल्सो इन पुणे। ये दो जगह पर हम मानस रंग का ये करते हैं। थर्ड थिंग जो मैंने बोला था, जैसे कि किमाया करके एक हमारा कैंटीन है जो सातारा में रन कर रहे हैं। इट इज फुल्ली रन बाय पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड देयर केयरगिवर्स। और सेम हमारा आसाम में है जो है माइंड कैफे, सेम इट इज फुल्ली रन बाय पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस एंड केयरगिवर्स। तो इनका पूरा देखभाल करना, जैसे कि पूरा चाय बनाना, खाना बनाना, जो भी वहां पे हम डिलीवर करते हैं, बाकी परचेजिंग्स रहते हैं, डिलीवरी रहते हैं, बाद में पूरा हिसाब किताब रखना, एवरीथिंग आर डन बाय देम ओनली। वी आर जस्ट मॉनिटरिंग देम। और दोनों ही जगह पर हमारा हमने देखा है कि इन लाइक जस्ट 6 months हम नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसे इसमें आ गए हैं, जो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। स्पेशली वी लुक इनटू बिजनेस पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम हमेशा चैरिटी अगर ये करेंगे, लोगों को बोलेंगे चलो हमारे पास में एक बार आकर आप कुछ तो खाओ, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए के हिसाब से अगर देखेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। तो अगर हम क्वालिटी कुछ डिलीवर करते हैं तो डेफिनेटली पीपल विल कम। तो उससे यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए एक आराम से हो जाएगा। तो यही है हमारा, ये जो दोनों जगह पर शुरू किया था, बहुत अच्छी तरफ से रन कर रहे हैं। जो हमें लगता था कि मन के बीमारी के लोग भी किस तरफ से काम कर पाएंगे, उनको काम के लिए मौका भी नहीं मिलता है, बहुत बार लोग देते भी नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया, बहुत ही अच्छी तरफ से सक्सेसफुल रहा है, अच्छी तरफ से चल रहा है, दे आर डूइंग परफेक्टली फाइन। हमें किसी को बोलने नहीं पड़ते हैं ये मन के बीमारी के लोग हैं, आप आओ हमारे पास कुछ तो एक दिन खा के जाओ, ऐसा बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो बहुत मजा लग रहा है इनके ऐसे सब इनिशिएटिव्स को जब हम देखते हैं, जो हमारे आंखों के सामने जो हमने शुरू किया था और जो आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। Definitely it will help us also. It will, as in like we are managing all these things, we want to extend such services in different places. तो बहुत ही अच्छा लगा ये कंसेप्ट। और ऐसे ही हम और भी करना चाहते हैं ऐसे सेम सिमिलर इनिशिएटिव्स। और एक इनिशिएटिव्स जो है हमारा, वो भी बोलना चाहूंगा। जो टेलरिंग यूनिट, एम्ब्रॉयडरी एंड स्टिचिंग का यूनिट भी है, वो भी एक्चुअली हमारा है, दोनों जगह पर है, जो सातारा में है एंड ऑल्सो इन तेजपुर। उसमें भी बहुत सारे लोग आके अपना ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें इसमें एक यूनिक फीचर ऐसा भी है, इट्स नॉट अ ग्रुप ऑफ ओनली पीयर और केयर गिवर। ये ग्रुप ऐसा है जहाँ पे कम्युनिटी के लोग भी आकर वहां पे सीख सकते हैं, ताकि अगर हम वो अगेन सेक्लूडेड ग्रुप का अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो फिर वो फिर से यानी कि उसमें कलंक लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है। अच्छा ये मेंटल लोगों ने कुछ तो खोला है, बहुत बार बोलते हैं, आमतौर पे लोग बोलते हैं। तो अगर उसमें हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं, चलो बाकी लोग भी अगर आते हैं, तो लोगों को लगता है चलो वहां पे जाकर लोग कुछ तो सीख रहे हैं। तो उनको लगता है कि अच्छा, गांव के लोग यानी कि समझ में आता है कि इनको मन का बीमारी है, पर जब वो बाकी लोगों के साथ में काम करना जब शुरू हो जाता है, तो उनको लगता है कि उनके अंदर में कुछ तो पोटेंशियल है, इसलिए वो सब साथ में काम कर रहे हैं। तो एक स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन भी कम करने में यहाँ पे मदद हो जाता है। और एक जो है हमारा यानी कि स्पेशल ये इनोवेटिव, जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर जो है, लास्ट में बोलना चाहूंगा, बट बहुत ही यूनिक है। जैसे कि बहुत बार डी एडिक्शन सेंटर की बात हम बोलते हैं तो एक हमें हमेशा याद आता है कि एक लॉक एंड की सिस्टम, जो हमारे मीडिया में बहुत बार हमें दिखाया जाता है, तो वही हमारे मन में भी सोच रहती है। और बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स या रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हमने ऐसे ही देखे हैं, जहाँ पे लोगों को एक लॉकअप में रखा जाता है, यानी कि गेट हमेशा लॉक रहता है, रूम के बाहर में आना नहीं देता है।
पर हमारा जो अभी स्पेशली जो सातारा में है वहाँ पे हम वीकली बेसिस पे उनको बाहर में घूमने के लिए लेकर जाते हैं, जो टाउन में है इसलिए। और यहाँ का जो हमारा तेजपुर का जो है, यहाँ पे हमारा कभी लॉक एंड की सिस्टम ऐसा कंसेप्ट ही नहीं। जब हमने शुरू किया, ये अभी 1.5 ईयर हो गए हैं, लॉक एंड की सिस्टम का अप्रोच ही नहीं है हमारा। ये खुला हम रखते हैं, जो विलिंगनेस रहते हैं, विलिंग टू क्विट द वट एवर द ये एडिक्शन, वो एक रहते हैं। सेकंड, रिहेबिलिटेशन के लिए रखते हैं हम। यहाँ पे ऐसा नहीं कि किसी को बहुत सीवियर काइंड ऑफ सिम्टम्स हैं, पर्सन्स विथ मेंटल इलनेस, उनके लिए हमारे पास ऐसे फैसिलिटी नहीं, बट रिहेबिलिटेशन के लिए जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए है। तो ये एक इसमें एफर्ट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ता है, बट डेफिनेटली ये एक बहुत सक्सेसफुल मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी मैंने आज तक इसके थ्रू लोग देखे हैं हमारे ये सर्विस का फायदा उठाए हुए, उनका सबका हमारे साथ रेपो बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो गया है। जब भी घर में भी जाते हैं, फोन करते हैं तो बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इमीडिएटली दे आर कॉलिंग अस, और हम भी वो रिलैक्स होने के पहले उनको हम वापस बुला सकते हैं हमारे फैसिलिटी में, तो और 1-2 दिन वो रह के चले जाते हैं। फॉलोअप रेट भी बहुत ही अच्छा है, और फैमिली के साथ में एक जो रेपो बनना होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से हो पा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं ये पूरे रिकवरी प्रोसेस में। उनको वीकली 1 टाइम यहाँ पे बुला लेते हैं, तो उनको अपडेट देते रहते हैं क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। और हमारे बाकी टीम जो है पूरा फ्रेंडली है, तो एक नया तरह का कंसेप्ट हमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, और जो मीडिया लोग दिखाते हैं उससे थोड़ा हटके लोगों को दिखाना जरूरी है, तभी लोगों को विश्वास हो जाएगा। तो ये एक है जो डेफिनेटली, यानी कि एक बहुत ही अलग तरह का कंसेप्ट है जो धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। परफेक्ट, ब्रिलियंट। सो आई थिंक आप बहुत सारी चीजें दिलीप जी जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत इनोवेटिव है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इट्स very very good and it's very nice to have you here talking about all of these things. I hope all the viewers who are watching us, आप में से जितने जने, अगर आप में से कोई भी है जिसको लगता है that you would like to seek help from Dilip ji or from Parivartan Trust, please let us know. I'll share the details and everything with Dilip ji so that they can connect with you later on. अगर आप में से किसी के पास कुछ questions है so please ask those questions so that we can ask those questions to Dilip ji and see what are the answers that he can give us for the same. Dilip ji, while we wait for questions from other people, I also wanted to ask you, as an NGO, there are a lot of challenges that come up, right? What are the key challenges जो आप लोग face कर रहे हैं? सर एक्चुअली डेफिनेटली एनजीओ का चैलेंजेस एक अलग लेवल के चैलेंजेस, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन भी आपने जो पूछा है ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर ऑल्सो। पर अभी हम चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं स्पेशली एनजीओस के लिए, स्पेशली जो हम फेस कर रहे हैं, एक तो मॉनेटरी सपोर्ट एक जरूरी होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि मैं लाइक आई एम फुल्ली डेडिकेटेड टू सोशल वर्क, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पूरे बाकी जो टीम है, जो ह्यूमन रिसोर्स लगने वाला है, that everyone will work like without any kind of financial support. Definitely एक तो sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, definitely एक फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। एक फंडिंग या जो मे बी फ्रॉम CSR या जो भी जहाँ से भी हम फंडिंग्स ये अप्रोच करते हैं, तो ऐसे यानी कि ये जो ग्रेटर कॉज के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, they are not able to like perform, they are not able to go ahead only because of like lack of support, lack of financial support. ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हर जगह पर हो रहा है। इवन हमारे ऊपर जब ये चैलेंज आ गया था, जो मैं बोल रहा था पहले कि 2 साल पहले की एक जैसे मुसीबत आ गई थी, तब हमारे पास भी हमें लग रहा था कि बंद करे या कंटिन्यू रखे। अगर बंद किया होता तो मैं आज आपके सामने भी नहीं होता, बट फिर भी हमने सोचा चलो कुछ तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे धीरे धीरे हमने बाकी एक्टिविटीज स्टार्ट किया, लोगों से अप्रोच करना शुरू हो गया, तो आज अभी कंप्लीट
2 years हो गए, अभी भी हमारे ऐसा कोई फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली वी आर एबल टू मेक सम रेवेन्यू फ्रॉम आवर एक्टिविटीज। जो मैं इवन डेफिनेटली सभी एनजीओ के लोग अगर हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग अगर हैं, तो डेफिनेटली आई सजेस्ट लाइक डेफिनेटली शुड नॉट गिव अप, डेफिनेटली वी शुड ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे काम करने वाले हैं। एंड द सिचुएशन यानी कि मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम आगे में जो आने वाला है, मे बी इन नेक्स्ट 5-10 years इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम, जो हम आज तक अभी मेंटल हेल्थ को उस तरफ से नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड केसेस होती हैं, तो वो एक इंसाइट हमें डेवलप करना या उसमें सपोर्ट करना, डेफिनेटली ये बंद करना तो इसका ऑप्शन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। डेफिनेटली वी विल हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज, और हर एक के लिए वो अलग अलग ये हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं, बट डेफिनेटली वी शुड नॉट स्टॉप, वी शुड कंटिन्यू। एक तो मैंने बोला जैसे कि फाइनेंशियल चैलेंजेस रहते हैं बहुत बार, जैसे कि हम कम्युनिटी बेस्ड काइंड ऑफ लाइक काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब हम बोलते हैं कि हम एनजीओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लोगों को देखने का एक तरीका एक अलग हो जाता है। तो इसकी वजह भी बहुत सारी हैं, पर क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि एनजीओ के, कोई भी जाने से बोलते हैं कि मैं एनजीओ से हूँ, चाहे वो उनका कुछ एनजीओ का कुछ बैकग्राउंड नहीं होने से भी बोलते हैं हम एनजीओ से हैं करके, जो स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट में भी हमने फेस किया है। जब हम एनजीओ के लोग बोलते हैं, अच्छा आप क्यों आए, आपके पास शायद पैसा बहुत मिलता है तो हमें पैसे देने के लिए आ गए हैं, या इस तरह से चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं कि लोगों को समझाना कि एनजीओ का काम क्या रहता है और किस तरह से एनजीओ काम करते हैं। तो टू मेक देम अंडरस्टैंड इज ऑल्सो इट्स अ डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली क्योंकि हम अगर ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, आ, उनका सोच जो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। जो मैं पहले बोल रहा था कि टीवी पर दिखाता है मन का बीमारी के लोग, एक एंटरटेनमेंट फिगर दिखाया जाता है जो हमारे मन में बचपन से बैठा हुआ है। वैसे शायद गांव के लोगों को भी, या जो भी हम जहाँ पे भी काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो उनके मन में पहले से बिठाए हैं जो लोग आएंगे तो फिर उनको कुछ तो रिलीफ दे देंगे, या उनको कुछ पैसा दे देंगे, उनको या घर बना के दे देंगे, इस तरह से भी सोच है। पर ऐसा ये नहीं है कि डेफिनेटली कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कर रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं या बाकी उनको सामान दे रहे हैं, पर हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हम सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक ओनली वी आर डूइंग समथिंग लाइक गिविंग इन काइंड और इन कैश, बट डेफिनेटली एक जानकारी भी पहुंचाना, और वो सही जानकारी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, ये भी आज के जमाने में एक बहुत ही डिफिकल्ट मुकाम हो गया है। तो वो हासिल भी करना उतना आसान नहीं है। तो लोगों को समझाना कि आपका काम क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड टू मेक पीपल टू मेक द बेनिफिट ऑफ योर सर्विसेज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम बहुत अच्छी तरह से यानी कि कंटिन्यूअस पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, लाइक हैविंग नेटवर्किंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स एट द कम्युनिटी लेवल, तो ऐसे करके हमें ये फेस किया, तो इसके थ्रू हम ओवरकम कर लिए हैं। और एक बार जब हमारा नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ जाता है, डेफिनेटली इट हेल्प्स अस लाइक स्पेशली व्हेन वी आर कैचिंग द कम्युनिटी, तो वही लोग हमें हेल्प करते हैं कि चलो हम आपको और जगह पर आपको लेकर जाएंगे, आपके काम के बारे में और जगह पर हम आपको रास्ता दिखाएंगे। So definitely we should work in a collaborative way, especially when we are working at the community level, जो देखा है। नेक्स्ट चैलेंज ये यहाँ पे स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईस्ट, जहाँ पे हमारा बेस है आसाम, तो यहाँ पे एक जो चैलेंज हम हर साल फेस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड यहाँ पे हर साल रहता है। तो फ्लड की वजह से भी यानी कि बहुत बार अभी हम देख रहे थे, ड्यूरिंग फ्लड्स क्या होता है, जो लोग जिनका घर हर साल डूब जाता है, पानी में बह जाता है, और जब फ्लड सिचुएशन हो जाता है तो वो ट्रेवल भी नहीं कर पा रहे हैं, इनकी सर्विसेज भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम भी कहीं पे जाते हैं, जैसे कि हम कैंप्स, हमारे आउटरीच कैंप्स रहते हैं, तो वहां तक भी वो आ नहीं पाते हैं, और हम उनको मेडिसिन भी सप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता, कनेक्टिविटी ही नहीं रहती। तो यहाँ पे आसाम में हम एवरी ईयर यानी कि फ्लड का सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उसके लिए यानी कि सिर्फ वो हमारे हाथ में नहीं है,
करने के लिए। पर यानी कि इसमें पूरा फ्रॉम द सिस्टम साइड ये करना पड़ेगा, और इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए डेफिनेटली द गवर्नमेंट एंड द अदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू टेक सम इनिशिएटिव। बट हमारी तरफ से क्या कर सकते हैं, जैसे कि इस साल में भी हमने देखा, इस साल में हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया तो लोग ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, इवन हम ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, मन का बीमारी के लोग ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, मेडिसिन नहीं ले पाए, तो उसकी वजह से रिलैप्स हो गया बहुत सारे लोगों का। बट फिर भी हमारा जहाँ पे हमारी कनेक्टिविटी थी, जहाँ पे हमारे आउटरीच कैंप्स होते थे, तो वहां पे हमने स्पेशली जैसे इसी दौरान टेली साइकेट्री भी लीगली अप्रूव हो गए हैं। तो हमने क्या किया, जैसे कि ओवर फोन बहुत सारे पर्सन्स विद मेंटल इलनेस, उनको हमने देखा जिनको मन का बीमारी का प्रॉब्लम था। तो हमने खुद हमारे इनिशिएटिव्स इसके दौरान हमने शुरू किए कि जो भी कोई मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की, अगर किसी को ऐसी जरूरत है तो वो कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे साइकेट्रिस्ट या बाकी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, वी वर लाइक हेल्पिंग देम ऑल द टाइम। ये हमने मनोबल हेल्पलाइन करके जो शुरुआत की थी, ये आसाम में भी स्टार्ट किया हमने, सातारा महाराष्ट्र में स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को एक मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जो फर्स्ट एड, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड हमने को प्रोवाइड किया। जो एक डर था, एक फियर था कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो ये भी हम बहुत अच्छी तरह से, यानी कि जो डिजास्टर, ये दो तरह का यानी कि हमने देखा यहाँ पे। तो एक हर साल ब्रह्मपुत्र का भी ये हो रहा है, फ्लड आता रहता है, और दूसरा एक कोरोना वायरस, ये दोनों इस साल में यहाँ पे साथ में हो गया। तो बट डेफिनेटली विद द सपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी की स्टेक होल्डर्स, ये हमें उनको अच्छी तरह से सर्विस डिलीवर करने में मदद होगा। बट डेट टू, यानी कि हमने बहुत लिमिटेड लोगों को हेल्प किया, बहुत सारे लोगों को नहीं, जितने लोग हमारे कांटेक्ट में थे उनको हमने सर्विस डिलीवर बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश की। परफेक्ट। सो आई थिंक दिस वाज अ, आपने हमें दोनों चीजें बता पाए थे आप, कि किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, और किस तरह के और आप किस तरीके से उन चैलेंजेस को आपने फेस किया है। सो आई थिंक फॉर एवरीवन वाचिंग, इट्स इम्पोर्टेंट टू नो, कभी कभी हमको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास बहुत सपोर्ट है, बहुत सारा फंड है, पर ऐसा हमेशा होता नहीं है विद एनजीओ। स्पेशली आई नो सो मेनी एनजीओ जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इफ यू सी द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पुट इन, इट्स जस्ट रिमार्केबल। सो क्योंकि इनमें से काफी हद तक आप चैलेंजेस मैनेज कर पा रहे हैं, अगर लोग किसी तरीके से आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल? बहुत ही अच्छा सवाल सर। हम तो चाहते हैं, यानी कि हमें तो हर लोगों से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट जो फर्स्ट, यानी कि मैं आपसे भी चाहूंगा, बाकी जो हमारे आज प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी मैं चाहूंगा, जैसे कि जो गलत जानकारी होती है, स्प्रेड हो जाती है, उसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, ये तो फर्स्ट है। सेकंड, हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि अभी मैंने जो ये बात करते समय बहुत बार बोला, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हमारे होने चाहिए, जो हर लेवल पे होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम अगर आसाम में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं ये दोनों जगह पर ही हमें सपोर्ट चाहिए। स्पेशली मैसेज स्प्रेड करने के लिए हम कहीं से भी कर सकते हैं। हमसे स्पेशली डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं, इनडायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। हम बहुत लोगों को लाइक इनवाइटिंग लाइक वॉलंटियर्स टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, द वर्ड ऑफ रिकवरी। जो बहुत बार लोग बोलते हैं कि मन का बीमारी ठीक नहीं होते हैं, उसके लिए लोगों को डायरेक्टली, जो बहुत सारे लोगों को हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, जैसे कि वो बहुत सारे लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, ऑनलाइन वॉलंटियरिंग हो या हमारे साथ में जुड़ के वॉलंटियरिंग हो, ये भी कर सकते हैं। दूर दूर में बैठकर स्पेशली पूरे प्रोसेस में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उसके थ्रू हम बहुत सारे जानकारी स्प्रेड करते हैं, वो भी स्प्रेड करने में हमें लोग मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जो डेडिकेटेड रहते हैं, तो उनको डेफिनेटली फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू, नॉट डायरेक्टली, यानी कि हर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं करवाएगा, बट डेफिनेटली गिविंग सम टाइम टू स्प्रेड द मैसेज,
to help us to organize some program, जहाँ पे कुछ programs कर सकते हैं. आजकल online भी programs ऐसे कर रहे हैं. जैसे कि मैं आपको नितिन सर को पहले जानते नहीं थे, बट आपके थ्रू मैं एक कुछ तो मैसेज रख पा रहा हूँ. तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हमारे रिसोर्स पर्सन जो होते हैं तो उनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ये पूरे प्रोसेस में. तो जो भी द राइट इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी हम बहुत अच्छी तरह से ये मीडियम के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ग्रासरूट लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं. ओके, परफेक्ट. और अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? सर हमारे फेसबुक पेज हैं जो परिवर्तन ट्रस्ट मेंटल हेल्थ एंड डी एडिक्शन, जो हमारे सातारा महाराष्ट्र में चल रहे हैं. दूसरा हमारा परिवर्तन ट्रस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पेज है. ये दोनों फेसबुक पेज है. हमारा ट्विटर अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है. तो इससे जुड़ने से भी बहुत ज्यादा हद तक हम लोगों तक पहुंच पाएंगे. डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक आवर पेज, स्प्रेड द वर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ. और जो भी डिटेल्स है मैं आपके इसमें मैं शेयर. प्लीज आप शेयर कर दीजिएगा. मैंने आपका ट्रस्ट का लिंक तो ऑलरेडी शेयर कर दिया है. आप कुछ कह रहे थे? दिलीप जी, कैन यू हियर मी? Okay, I think some slight difficulty with what Dilip ji is about to tell us. But I've shared the Parivartan Trust Facebook page, Northeast, in the comments. Please visit it, check it out. And if you have any questions, please feel free to reach out to us, reach out to Parivartan Trust so that we can help you, we can guide you in the entire process. I hope you have been enjoying this discussion. There are a lot of interesting things that I've come to know about Parivartan Trust that I did not know earlier. Some things that I knew, but I've got to know about them in more detail right now. And it's really impressive the kind of work that Parivartan Trust is able to take it forward in the last couple of decades. While we wait for Dilip ji to come back, I have a request for all of you that remember we are doing whatever we are doing because we eventually want to spread the work that is being done by different NGOs in the area of mental health. The reason is that we are really committed and really passionate about spreading the awareness of mental health. Any of you who face any difficulty in your life, please don't hesitate to visit a mental health practitioner. Whenever it is where you feel it for more than a couple of days, you're experiencing discomfort, you're feeling overwhelmed, or you have certain thoughts that you're not able to manage, don't wait for it to get too late. Just go ahead, consult a mental health practitioner, and you'll be surprised that a lot of unnecessary suffering that you would have gone through, you would be able to avoid. I have said this multiple times that I promise, I commit, whenever I'm in a situation like this where I need help, I would surely visit a mental health practitioner. To be true, I already have my own support system. I have my own mental health practitioner who I consult regularly whenever there is a need and whenever there's a requirement. And when I say there's a need or a requirement, I don't wait till I feel that, oh, the world is coming crashing. The moment I start feeling that I'm not sure what needs to be done, if I start feeling a bit confused for more than 2 days, and I would surely visit my mental health practitioner. And I hope you also begin to do that. It's extremely important, and at one point a lot of these services were very expensive. Today you have NGOs like the Parivartan Trust, like Aicha Support Foundation, and there have been a lot of other NGOs that we have brought in front of you in the last couple of months. Please feel free to connect any of these NGOs. They would all be able to help you, support you. If you're looking for a list of NGOs that you can connect with, please get in touch with us and we'll be more than happy to provide you with that list. Deepak ji has not yet been able to join and I'm not sure what happened. I'm going to wait for him for another 10 seconds or so to see if he's able to join us. If he does, that's brilliant. Just in case he's not able to, we have more or less covered most of what we wanted to cover.
I was just about to ask him in terms of how else people can connect with him. I have already shared the Parivartan Trust Facebook page, so you can always connect with them over there. Um, and if you have any questions, please let us know. I'm just waiting for him to see if he can log in again. Yep. So I've just had a word from him. He's joining again. We're really sorry for the technical difficulties with everyone being online right now. The internet speeds seem to get affected from time to time. And while we are waiting for him, if you are aware of any NGO that is working in the area of mental health, please connect with us and let us know, because we would love to invite them and we would love to help them spread the word about the kind of work that they are doing. Uh, you can always connect with me. You can always post the details in the comment section and we would get in touch with them. Okay, there seems to be some difficulty that he is facing still, because of which he is not able to join in. So I would like to thank all of you who have been able to join us today for this session. As I said, if you have any questions still, please get in touch with us. If you would like to know more about ICHA Support Foundation or about the Parivartan Trust, drop in the message and in the comments and we would share more details. For those of you who don't know what ICHA Support Foundation does, I'm also sharing the details about ICHA Support Foundation in the comment section. And we also have Dilip sir back with us. So I'm just taking him back and then we can carry on this conversation. Welcome back, Dilip sir. I'm not able to hear you. No, I'm still not able to hear you, sorry. Can you just try joining in one more time? I'm still not able to hear you. Dilip sir, can you just try joining in once again? Just refresh the page and see if that helps. So we're just waiting for him to join in again. Give me 2 more minutes and see if he comes back. Yeah, Dilip sir, I'm able to hear you now. Can you hear me? I can hear you now. Yeah. Okay, so we were just reaching the last couple of questions for today. Yes, sir.
Uh, I wanted to know any future plans that you have with and Parivartan Trust has, apart from what we've already discussed. Uh, so definitely we have lot of plans. Definitely we wanted to deliver this cost-effective services to the maximum people, especially in the place where there are like no services or lack of services. So we wanted to reach to maximum people, especially the northeast part. So initially we started only in Assam, but we have expanded our services to Arunachal Pradesh. Gradually, we wanted to spread in the entire northeast, and definitely in the other part of country also. It's not like the lack of services or no services things only in northeast part, but even if you go to mainland India, जहाँ पे भी बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल हैं। सेकेंडली जो कॉस्ट इफेक्टिव सर्विसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कि कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छे सुविधा कैसे मिल सकती है। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, बट डेफिनेटली क्या होता है, बहुत बार हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट इन रिटर्न हमें उसका बेनिफिट कितना होता है वो भी बहुत बार लोग देखते हैं जो सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, क्योंकि उनको ट्रेवलिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। दे हैव टू परचेज मेडिसिन लॉट ऑफ टाइम्स ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू कंटिन्यू द सर्विस। हमें यानी कि मल्टीपल लेवल पे कोलैबोरेट होके ये सर्विस डिलीवर हम करना चाहेंगे, ताकि जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही मेजर चैलेंज हैं जो फेस करने के लिए हमें मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम द ग्राउंड टू द लाइक टॉप लेवल पे हम काम करना चाहेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं ये सब हमारे प्रोसेस में, ताकि एक अच्छे से अच्छी सर्विस किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एक इंटरवेंशन डिलीवर करना चाहते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को एक काउंसलिंग सेशन लेने के लिए उनको एक 50 किलोमीटर आना पड़ता है या 100 किलोमीटर आना पड़ता है, उस तरह से नहीं होना चाहिए। बट ये जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे ग्रास यानी कि कम्युनिटी लेवल पे रिसोर्सेज हैं, वो किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। जैसे मैंने मानस रंग ग्रुप जो बोला था, वो भी वैसे सिमिलर हम ग्रुप यानी कि एवरी जहाँ पे हमारे काम चल रहा है वहाँ पे स्टार्ट करके लोगों को इन्वॉल्व करके इसके थ्रू जो चैलेंजेस डिफिकल्टीज हैं फेस करने में हम उनको मदद कर सकें। तो ऐसे हम हमारा काम डेफिनेटली बढ़ाना चाहते हैं लाइक इन द एंटायर कंट्री। और मैं एक बोलना चाहूँगा, स्पेशली जब आपने और एक बार इसके आगे मुझे सवाल जो पूछा था कि लोग किस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं स्पेशली, तो जैसे हमने बहुत सारे स्टडीज रिपोर्ट्स देखे हैं जो हमारे ज़्यादातर मन की बीमारी जो शुरू हो जाती हैं, लाइक हमारा एडल्ट यानी कि इन द एज बिटवीन लाइक 15 to 30, जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड स्टडीज हैं हमारे सामने। तो बहुत सारे यूथ को हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में। तो यूथ को इन्वॉल्व करके उनको जो भी डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं, उनके डे टू डे लाइफ में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरह से हमारे पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करके उनको किस तरह से ये प्रोग्राम से आगे लेकर जा सकते हैं, एंड विच दे विल बी अ पीयर सपोर्ट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस कॉज स्पेशली, जो उनके थ्रू हम बाकी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। उनकी स्प्रेडिंग दिस the work of Parivartan, the work of mental health, especially I would say, wanted to spread to the maximum people. And one more thing is like to deliver like best services to the last person. तो इस मोटिव से हम आगे बढ़ रहे हैं। Good. Nice. So that's actually very good to hear. Thank you, sir. And one reason why people should know about Parivartan Group, Sir? अगर मैं आपसे एक रीजन बोलूं कि लोगों को परिवर्तन के बारे में क्यों पता होना चाहिए, परिवर्तन ट्रस्ट के बारे में, तो वो एक सिंगल रीजन क्या होगा? मैं बोलना चाहूंगा एक कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के लिए परिवर्तन को जानना चाहूंगा। Okay.
Perfect. Lastly, Dilip ji, any differences that you have experienced in your life जब आप एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, इस मेंटल हेल्थ के एरिया में काम कर रहे हैं, तो कोई पर्सनल चेंजेस जो आपने नोटिस किए हैं? डेफिनेटली सर, बहुत सारे चेंजेस, यानी कि स्पेशली मेरे लाइफ का जो कैरियर जो है, मैंने पूरे मेंटल हेल्थ में ही किया है, काम किया है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि पर्सनल मेरे जो स्किल्स या बाकी जिसमें मुझे हेल्प हो गया है, प्रोफेशनली भी बहुत सारी चीज़ों में मुझे हेल्प हो गया है। पर्सनली जैसे कि मेरी स्किल्स हैं जो मैं, यानी कि जो लोगों के सामने आकर बहुत सारी कुछ बातें जो हैं, मैं बहुत बिगिनिंग में मेंशन किया था, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो आज मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर बहुत सारी बातें सीख गया हूँ। लोगों से बात करना या नेटवर्किंग करना, या जो बहुत बड़े लेवल के हमारे प्रोजेक्ट्स जो हुए थे तो उसमें मैंने लीड किया है। ये परिवर्तन का वर्क जो है मैं भी यहाँ पे अभी ये पूरा लीड कर रहा हूँ। तो इसके थ्रू डेफिनेटली मेरे बाकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो भी बहुत सारे डेवलप हो गए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो, नेटवर्किंग विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जो और मैं बोलना चाहूँगा जो कुछ नया सेटअप स्टार्टअप करने के लिए जो हम बोलते आए हैं, तो वो भी मैं यहाँ से सीख गया हूँ, जो मैं बहुत अच्छी तरफ से, यानी कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के थ्रू लर्न किया है, जो मुझे डेफिनेटली हेल्प किया है और डेफिनेटली आगे भी हेल्प करेगा, स्पेशली। और सेकेंडली, बाकी जो एजेंट प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग हो, सुपरविजन हो, लुकिंग आफ्टर द फाइनेंसेस, बजट, या बाकी जो हमारे सर्विसेज होते हैं, लाइक चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, चेक आउट, लाइक टेकिंग द रेगुलर फीडबैक, सुपरविजन जो हमारे टीम को ऑर्गेनाइज करना है, ट्रेनिंग रहता है, getting some like innovative things, learning from different stakeholders, learning from बाकी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे थ्रू लर्न करना, एक बहुत सारा, एक लॉट ऑफ थिंग्स दैट एक्चुअली हेल्प मी टू लाइक गेन लॉट ऑफ नॉलेज, स्किल, my personal skills and also the organizational skills, and then like writing and then looking after the different projects and all. That's very nice. That's very interesting. Uh, for a lot of you who are watching us today, you may not realize actually that while many of us work in the NGO sector and especially with mental health, the personal journey that we have experienced as a result of connecting with people, the learnings that we go through, I actually don't have any words to be able to explain what kind of changes I have gone through in my life. So it's an experience in itself. For those of you who have not had that experience of working in the NGO sector, I would really suggest whenever you have time, maybe in some ways or the other, connect with an NGO, see if you can work with them, you can support them in any way. You would be surprised with the kind of changes that you will experience in your life when you're working with NGOs. So thank you, Dilip ji, for joining us today. I think that's a very good note for us to end the session on. Um, I would love to connect with you again soon and see how we can collaborate further, since we spoke about collaboration during this interview that we have had. And I really hope all of you are watching this video, you found this useful. If you have any questions, please feel free to connect with us. And I would once again request all of you to please make an announcement to yourself and to the world out there that whenever you need help, support when it comes to mental health, you would surely seek help. You will not wait for it to get too late. And if you have people around you who are going through any kind of challenges, please request them to join a mental health practitioner, connect with a mental health practitioner, because the sooner you connect with a mental health practitioner, the less suffering that you will probably have to go through, or the people around you will have to go through. दिलीप जी, इन दी एंड आई वुड लाइक यू टू मेक दैट अनाउंसमेंट एज वेल कि अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा, तो यू विल श्योरली सीक हेल्प फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एंड दैट यू प्रॉमिस कि यू विल आस्क अदर पीपल टू कंटिन्यू कनेक्टिंग विद मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स. डेफिनेटली सर, ये मैं बोलूँगा, और मैं बोलना भी चाहूँगा सभी लोगों को, व्यूअर्स को, कि जब हम हेल्प सीख करते हैं वो हमारा, यानी कि दैट शोज इट्स आवर स्ट्रेंथ,
बट इट्स नॉट आवर वीकनेस। बहुत बार हमें लगता है अगर मन का बीमारी के लिए, डिप्रेशन के लिए किसी के पास जाना, हमें लगता है कि वो हमारी वीकनेस है। बट डेफिनेटली वो हमारी वीकनेस नहीं, वो स्ट्रेंथ है। जो हमें लगता है चलो मुझे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, डेफिनेटली आई विल गो एंड सीक हेल्प। जो बाकी बीमारी के लिए हम जैसे बोलते हैं कुछ हो गया डॉक्टर के पास जाते हैं, मन की बीमारी के लिए जरूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। डेफिनेटली इफ एनीथिंग I'll definitely go. I suggest many of my friends, even I have recommended many of my family members, relatives, those who are suffering from this kind of services to access, to go to a psychiatrist, to go to a counselor, go to a clinical psychologist for their problem. And it helps them a lot, definitely, for any kind of problem. Definitely, I'll go, I'll seek help, and that is what we have to strengthen among the people. Perfect. Thank you. Thank you very much. And I will see all of you again next week, 7:30, with another NGO and describing the kind of work that they are doing. Thank you very much for catching up with us today. See you soon. Thank you, sir.